Dear students, today in this part 3 video of chapter microorganism, chapter 2 from science, we will learn about what is food poisoning, what is food preservation and different techniques of food preservation. So we will start. Microorganisms spoil food such as bacteria and fungi are responsible for the spoilage of food. माइक्रोऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, जीवाणु और फंजाई ये क्या करते हैं, खास करके फूड को स्पॉइल करने, खराब करने का काम करते हैं. इनकी वजह से फूड जो खाना है, जो भोजन है, उसमें सड़न या बदबू या रंग बदलना ये हम देखते हैं. Microbes thrive in warm and moist condition leading to the curdling of milk. Microbes गर्म और नम मौसम में, कंडीशंस में मिल्क को कर्ड में फर्मेंट करने का, कन्वर्ट करने का काम करते हैं. दे enhance the process of converting milk into curd. Putrefaction of meat means decay, सड़ना, decay of meat and rotting of fruits and vegetable. This is caused by bacteria and other microbes. Some types of fungi produce poisonous substances which make food unfit for consumption. कुछ fungi, some types of fungi, they are poisonous in nature. They secrete some liquid which causes lethal effect or dangerous effect. कुछ fungi ऐसे हैं जो जहरीले लिक्विड को सिक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं. इससे क्या होता है कि भोजन जो फूड है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं. ईटिंग सच फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. अब ये जो कंडीशन है, व्हेन द फूड इज कम इन टच विद द पॉइजन विच इज सिक्रेटेड बाय सम फॉर्म ऑफ फंजाई, देन सच टाइप ऑफ फूड बिकम्स टॉक्सिक और poisonous in nature. This condition of food causing toxic in nature known as food poisoning. Spoiled food, जो खराब भोजन है, जो दूषित हो चुका है, spoiled food item often show certain features such as unpleasant odor, sour taste, surface discoloration, cotton-like growth on the surface, change in texture and gas formation. Spoil of food. फूड का, भोजन का दूषित होना, इसके कुछ खास लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे भोजन से बदबू आना, अनप्लीजेंट ओडर, ओडर मीन्स स्मेल या बदबू, सोर टेस्ट, कड़वाट कसैला टेस्ट, सरफेस डिस्कलरेशन, जो भोजन है जिस बर्तन में रखा है उसमें आपको अलग तरीके का चिपचिपापन, लसलसापन, लाइक अ म्यूकस, स्टिकी लिक्विड फॉर्म आपको फील होगा. कॉटन लाइक ग्रोथ, कॉटन लाइक रेशेद आपको जाली पड़ी हुई दिखाई देगी बिकॉज ऑफ फंजाई, कॉलोनी ऑफ फंजाई. चेंज इन टेक्सचर, कलर में परिवर्तन होना, चेंजेस इन कलर. एंड गैस फॉर्मेशन, गैस खाना बंद रखा हुआ था, with the microbes it is converted into some other form. This will lead to generation of gas also. Smell. Now this was the food poisoning. Now we will see food preservation. ये तो हुआ कि भोजन कैसे दूषित हो रहा है. Now we will see
फूड प्रिजर्वेशन, हाउ वी कैन प्रिजर्व, हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व करने की अलग अलग टेक्निक हम यहाँ पे जानेंगे. वी कैन स्टॉप फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट. हम रोक सकते हैं कि भोजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आने न दिया जाए या उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाए. द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग food in order to stop or slow down its spoilage while maintaining the nutritional value, flavor and texture is known as food preservation. So this is the technique in which we maintain the nutritional values without disturbing the nutritional value, its flavor, etc. This technique is known as food preservation. Some of the methods by which food can be preserved for longer time are discussed below. Some techniques are given here which tells us how we can preserve food for long time. First is the boiling. Under boiling, pasteurization also comes. So we'll start boiling. First technique of food preservation. Boiling liquid food items such as milk kills microbes. दूध को गर्म करने से दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, उनको किल कर देते हैं. दिस बाय द प्रोसेस नोन एज बॉइलिंग. Pasteurization involves heating milk to a high temperature for a few seconds. Pasteurization एक प्रोसेस है जिसमें दूध को एक हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, बट फॉर वेरी फ्यू सेकेंड एंड देन कूलिंग इट रैपिडली, और तुरंत ही उसे ठंडा कर दिया जाता है. पैकेट वाले जो दूध मिलते हैं वो पेस्चराइज्ड होते हैं. जो शॉप पे मिलते हैं पैकेट में दूध, लाइक अमूल एटसेट्रा, पराग का जो है दूध यहाँ पे मिलता है, ऑल दिस आर पेस्चराइज्ड. दिस पेस्चराइजेशन प्रोसेस kills most of the microbes without changing the texture, flavor or nutritive value of the milk. This method was invented by French biologist Louis Pasteur. Milk available in Tetra Paks has a much longer shelf life. जो पैकेट में बंद दूध आता है, अमूल का आपने देखा होगा, टेट्रा पैक उसकी पैकिंग होती है, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है उन मीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू, इट मेंटेन्स its texture, color and nutritive value for longer time. This is known as shelf life. उनकी जो मीन जो खराब होना है, जो पॉइजनिंग है या स्पॉइलेज है, that can be avoided for longer duration of time. That is known as shelf life. This is because it has undergone ultra heat treatment, that is UHT, which involves heating the milk to a very high temperature for a few seconds and then cooling it rapidly. हम क्या करते हैं पेस्चराइजेशन में, फॉर अ फ्यू सेकेंड हम उस दूध को, मिल्क को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसको तुरंत ही रैपिडली हम कूल भी कर देते हैं. मिल्क कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय रिमूविंग द वाटर कंटेंट फ्रॉम इट यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड वैक्यूम ड्राइंग. वैक्यूम ड्राइंग से हम क्या कर सकते हैं कि मिल्क में जो वाटर है उसको वेपराइज करके मिल्क को हम पाउडर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड टेक्निक इज द रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग,
which helps to preserve the food for longer time as bacteria and fungi cannot grow at low temperature. रेफ्रिजरेशन में और फ्रीजिंग से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बैक्टीरिया और फंजाई वो डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे एट लो टेम्परेचर, मीन्स कूल टेम्परेचर पे डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे. हाउएवर वंस द फूड इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, माइक्रोब्स स्टार्ट्स ग्रोइंग वंस अगेन. मीट, fruits and vegetable can be preserved in this manner. Now the third technique is drying and dehydration. Dehydration means removal of water. Water is one of the key factor necessary for the growth of microbes. पानी ज़रूरी है microbes की growth के लिए. When water is removed through the dehydration, microbes cannot grow. अगर पानी को हम रिमूव कर दें बाय द प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन, देन नो माइक्रोब्स कैन ग्रो ईजिली. पल्सेस, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट्स आर सन ड्राइड. इन्हें धूप में सुखाया जाता है टू रिमूव द मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम, अदरवाइज माइक्रोब्स कैन स्पॉइल देम. Now next technique is preservatives. Preservatives like salt, oil, sugar, प्रतिरक्षक. In Hindi, प्रतिरक्षक, preservative. There are two types of preservative. Natural preservatives such as salt, sugar, oil and vinegar, जिसे हम सिरका में इस्तेमाल करते हैं, अचार बनाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हैं. Prevent the growth of microbes. इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं. इसलिए हम अचार में देखिए नमक, ऑयल वगैरह डालते हैं. हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट और शुगर रिमूव्स वाटर फ्रॉम फूड. अगर हाई परसेंटेज में हम सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो पानी है फूड में वो बाहर हम निकाल देंगे, thereby preventing the growth of microbes. Salt and sugar are commonly used in preserving pickles like achar, jams, jellies, fruits, vegetables and fish, etc. Now we'll see chemical preservative such as sodium benzoate, potassium metabisulfite. These are commonly used to preserve tomato ketchup and squash. Squash is a form of juice. It's a thick juice. Now last preservative method is canning. Canning involves storing sterilized food in airtight containers. कैन में रखना, किसी डब्बे या कैन में फूड आइटम्स को सुरक्षित रखना, उसमें से हवा को बाहर निकाल लेना और वैक्यूम निर्वात मीन्स नो एयर कंडीशन को क्रिएट करना. किसमें? कैन में. मेनी कैंड फूड आइटम्स सच एज फिश, वेजिटेबल्स, बीन्स एंड जैम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. We are getting canned food, canned cold drinks, etc. All these are preserved in form of canning. So here we have completed our food preservation techniques. Now we will see few science vocabulary. First, what are microbes? Microbes are tiny organisms that can be seen only through a microscope. Second, microbiology. Microbiology is the branch of science which deals with the study of microorganism. Microbiology विज्ञान की ऐसी एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, इनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं. थर्ड इज द फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ
breaking down of sugar or glucose into alcohol and carbon dioxide using microbes such as yeast, Y-E-A-S-T, yeast. This process is known as fermentation. In Hindi, किड़वन करना, खमीरीकरण करना. Next is the antibody, a protein produced in the special cells of the body to counteract disease causing germs known as antibodies. एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बनता है जब हमारे बॉडी में किसी फॉरेन जर्म्स या माइक्रोब्स का अटैक होता है. देन आवर बॉडी टू फिनिश देम इन टू काउंटरैक्ट सच डिसीज कॉजिंग जर्म्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं फ्रॉम डिसीज. नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस produced by microorganisms that can kill or stop the growth of harmful microbes. एंटीबायोटिक्स केमिकल दवाएं होती हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उनको किल करते हैं. नेक्स्ट इज द पैथोजेंस. पैथोजेंस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन particles known as pathogens. They are disease causing in nature. Last is vaccine. Doses of dead or weakened microbes that protects our body against future infections by the same microbes known as vaccine. वैक्सीन बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड स्ट्रेन, डीएक्टिवेटेड स्ट्रेन या वीकेंड स्ट्रेन जिसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, वैसे स्ट्रेन को, जीन को लेके हम क्या करते हैं? वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं और इस वैक्सीन को विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वी आर इंजेक्टिंग इनटू द बॉडी ऑफ patient or a healthy person to be safe from future diseases. हम हेल्दी पर्सन को भी वैक्सीन देते हैं ताकि आगे चल के उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट को तो हम इंजेक्शन इसलिए देते हैं ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए. बट हियर इन दिस केस डोजेस ऑफ वैक्सीन मे बी डिफरेंट for normal as well as infected person. So with this we have completed our food preservation and food poisoning. Thank you class.